So, hello, good morning, everyone. Welcome me back in the topic lines and angle. Today, we are working on a very difficult and important questions. So, I need your complete concentration, full patience. At the same time, I want you all to take a rough paper and a pencil so that you can start with me, you can continue with me, and later on, you can solve it all by yourself. So, you understand whether you are able to do it all by yourself or no. Okay, so let's understand the very first question. See, this is the way how you get a questions, like you have to prove, or maybe you have to use equations and get the required result. So how to tackle such kind of question we will understand. See, when if I want to explain you this question, it is very easy. Directly I can explain you, but I want you to understand how to tackle the question. So first of all, what you have to do is you have to search the properties where these angles possess. Whatever angles I am asked to prove, these angle possess, you have to search the properties. So first of all, I'll mark those angles where they are. ABC is here, AEC is here, and ACD is here. So let us first of all understand what all properties these particular angles have. At the same time, what is given here is this angle is equal to this angle. That means अगर ये x है तो ये भी x होगा. That also one should know. Okay, तो इसको थोड़ा सा अलग कुछ तो दे देता हूँ. ठीक है. Now ACD, if I check, it is exterior angle. तो देखो ACD, angle ACD is equals to देखो try to understand. देखो ये ऐसा है कुछ तो ये है ACD, तो ये कंप्लीट एंगल प्लस ये एंगल इज गोइंग टू बी ACD. तो एंगल BAC मतलब 2x, कैन आई से इट एज 2x BAC, ऊपर वाला एंगल 2x प्लस एंगल ABC. तो ये एक मुझे पता है. AEC ऑल्सो आई नीड, यू कैन चेक AEC. ABC तो मिल गया इन द सेम इक्वेशन आई गॉट ABC, है ना. AEC इफ आई चेक, AEC is also an exterior angle. Now if I want to show you, I'll show you that. I'll use a whitener. If I cancel this part from here, you can check that AEC is also an exterior angle. Hope you understand that. That's quite interesting here. AEC is also an exterior angle. So what is AEC then? Angle AEC is equals to x plus ABC. Okay? Now I got these two equations. Now I have to find out the connection between these two equations. Now you may not understand what is the connection. Connection का मतलब क्या होता है? That means I can manage these two equations, like I can add, I can subtract, or something like that, isn't it? Or equate. So that I have to check the connection. That the connection is nothing but this one, right? This is the connection between it. X is the connection because A is ADC, ACD I need, AEC I need, ABC I need, ABC I need. So the only connection I could see here is nothing but this X. तो अभी इसका यूज़ कैसे करना है, that I will be teaching you now. I just hope you understood how we have to tackle the question. That means I have to search for the equation where these angles will come in it. ये जो what I have to prove, these angles will come in that equation, proper equations. ठीक है. And once you get the equation, I have to tackle these equations. That means I have to either equate, solve, simplify, all that. Okay, that's it. ठीक है. तो हम लोग अभी ठीक से सॉल्व करते हैं इस चीज़ को. चलो, I got the track, so I'll continue with that. So here I need first of all to look at ACD. Okay, so angle ACD is equals to 2x plus angle ABC. This will be equation number 1. Reason would be exterior angle property. Here I can write equation number 1 as well. Equation number 2 check करते हैं. AEC is also an exterior angle, isn't it? So angle AEC is equals to x plus angle ABC. This will be equation number 2. But I am not calling this as equation number 2 because this time what I am going to do, I will just write what is x is equals to. X is equals to angle AEC minus angle ABC. Why I am doing that? Because I am going to substitute the value of x in equation number 1. Okay, so putting this x in equation 1. So check करो, properly understand it. Angle ACD
प्लस सॉरी इज इक्वल्स टू 2 इंटू ब्रैकेट एक्स. एक्स क्या है हमारा, ये है, मतलब एंगल ए ई सी माइनस एंगल ए बी सी. ठीक है, प्लस एंगल ए बी सी. आई जस्ट शो यू व्हाट इज इट. ये जो x था यहाँ पे है वो ये वैल्यू. ठीक है, देख लो, ये इक्वेशन नंबर 1 इज हियर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. इन दैट इक्वेशन व्हाट x वाज, दैट इज येलो कलर पार्ट, वो यहाँ पे है 2 इंटू ब्रैकेट एक्स, एंड x की वैल्यू जो थी वहाँ पे पुट कर दी. फिनिश्ड, दैट्स इट, नथिंग एल्स वी डू. तो आगे बढ़ते हैं. एंगल ए सी डी. See, now I have received everything in the equation, whatever I required, maybe not in the same format, but everything. ABC मेरे पास है, ACD मेरे पास है, EEC मेरे पास, सब कुछ मेरे पास है. अभी बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर विल बी डन. चलो सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई भी करते हैं. तो 2 टाइम्स एंगल AEC माइनस 2 टाइम्स एंगल ABC प्लस 1 टाइम ABC. सो 2 ABC माइनस 2 ABC प्लस ABC. मे बी हम इसको उधर भी शिफ्ट करते हैं एंड देन डिवाइड करते हैं, सॉरी सेपरेट करते हैं तो भी चल जाएगा, नो प्रॉब्लम. बट यहाँ पर भी कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा, देख लो, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए ई सी, जो मुझे चाहिए वो सब कुछ मिल गया, माइनस एंगल ए बी सी. 2 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस ए बी सी. तो ये जो है ए बी सी इधर शिफ्ट कर दिया, तो आई गेट एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए ई सी. हो गया मेरा प्रूफ. ठीक है, कुछ किया नहीं हमने, कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं की. हमने क्या किया, सिर्फ इन एंगल्स कहाँ हैं वो देखे, इस एंगल के बारे में जो कुछ भी प्रॉपर्टीज़ मुझे पता थी, स्पेशली एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और एंगल सम प्रॉपर्टी, उसका मैंने यूज़ किया एंड आई गॉट द प्रूफ डन. ठीक है, खुद से ट्राई करो, खुद से वर्क करो, यू मे गेट द आंसर. ओके, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट वन. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, यू कैन replay the video and watch it again. Let's go for the next one. Next is again the same thing, check कर लो. I need BOC, मतलब ये एंगल. Then I need angle A, you can check here. They mean to say, it mean to say कि this angle. ठीक है, एंगल बाइसेक्टर इज गिवन, तो हम लोग इसको ए नाम देते हैं, इसको बी नाम देते हैं. 2 है इसलिए मैंने ए बी या फिर एक्स वाई जो भी हो, एज यू विश, यू कैन टेक दैट. ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाता है यहाँ से. यहाँ पे कोई एक्सटीरियर एंगल वगैरह नहीं है, तो देन द अदर थिंग इज एंगल सम प्रॉपर्टी. देन द अदर इक्वेशन इज एंगल सम प्रॉपर्टी. तो BOC को पकड़ के, ये देखो BOC को पकड़ के एक इक्वेशन बनाओ. तो देखो एंगल BOC प्लस A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये आ गया इक्वेशन नंबर 1 मेरा. अभी एंगल A को पकड़ के एक इक्वेशन बनाओ. तो एंगल A को पकड़ के अगर मैंने इक्वेशन, इसका रीज़न एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, बराबर. एंगल A को पकड़ के मैंने इक्वेशन बनाया, तो वो हो जाएगा एंगल A प्लस 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2. रीज़न एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है ना, ABC इज ऑल्सो एन ट्रायंगल. तो जो कुछ दिख रहा है मुझे वहाँ पे, उन सब के इक्वेशन बन गए. एक बार इक्वेशन बन गए, इसका मतलब हमें क्या करना है, इनमें कनेक्शन ढूंढना है. और कनेक्शन तो दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे A प्लस बी है, यहाँ पे भी A प्लस बी है. हाँ, लेकिन ये A प्लस बी थोड़ा सा अलग दिख रहा है. क्यों अलग दिख रहा है, क्योंकि 2 है. तो मैं क्या करता हूँ, इसको देखो, एंगल A प्लस 2 इंटू ब्रैकेट A प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. बात समझ में आ गई? इज दिस क्लियर? नाउ what is A plus B is equals to, if I simplify this, A plus B is equals to 180 माइनस एंगल BOC. चेक कर लो, A plus B, इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो isn't it A plus B is equals to 180 माइनस whatever एंगल BOC, बराबर है ना, राइट? तो हो गया, ऑलमोस्ट हो गया. अभी वो A plus B की जगह पे ये जो कुछ दिख रहा है वो डाल दो. दैट मीन्स एंगल A प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 180 माइनस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? देखो अभी इक्वेशन में सब कुछ आ गया, एंगल A आ गया, एंगल BOC आ गया, 90 वगैरह, 90 तो नहीं है बट 180 है, तो आ जाएगा 90 कभी कहीं ना कहीं. दैट मीन्स इफ आई सिंप्लीफाई दिस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग टिल हियर, देन आई एम गोइंग टू गेट दिस आंसर, द रिक्वायर्ड रिजल्ट. ठीक है,
लेट्स स्टार्ट वर्किंग। देखो मैं फिर से समझाता हूँ आपको। ये जो बी ओ सी था, ए प्लस बी था, ये रहा वो ए प्लस बी की जगह पे मैंने ये पुट कर दिया, समझ लो। ओके, और वो मुझे कहाँ से मिला? इक्वेशन नंबर 1 से मिला। ठीक है, अभी सिंप्लीफाई कर देते। एंगल ए प्लस 2 इंटू 180 मतलब 360 माइनस 2 इंटू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो एक बात तो आपको समझ में आनी चाहिए कि बी ओ सी तो पॉजिटिव है, तो बी ओ सी को उधर भेज देते हैं, 180 को इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो एंगल ए प्लस 360 माइनस 180 तो 180 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल बी ओ सी। समझ लो, हो गया। तो बी ओ सी सिर्फ है, ये 2 नहीं है वहाँ पे, तो 2 को इधर शिफ्ट कर दो। तो एंगल ए प्लस 180 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। तो दोनों को डिवाइड कर दो, एंगल ए बाई 2 एंड ये आ जाएगा 90। हो गया, ये हो गया मेरा प्रूफ। डन, दैट्स इट। समझ में आया? ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ। चलो, लेट इट टेक टाइम, नो प्रॉब्लम, बट अंडरस्टैंड इट केयरफुली, अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। इक्वेशन बनाना बहुत आसान है, इट्स नॉट अ बिग डील। चलो, मेरा टारगेट क्या है? देखो, मेरे पास जो भी दिख रहा है ना, उसके लिए इक्वेशन बनाना है। तो मेरे पास एंगल बी ओ सी है, बी ओ सी के लिए इक्वेशन बना। तो बी ओ सी के लिए इक्वेशन ऐसे बनेगा, देखो, एंगल बी ओ सी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ए प्लस बी ही कनेक्शन होगा 100%, है ना? तो मुझे पता चल गया अभी, बिकॉज इससे पहले मैंने सॉल्व किया था। तो ये मैंने लिख लिया ए प्लस बी की जगह पे, ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। ओके, एंगल ए प्लस 2a प्लस 2b इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बराबर। यहाँ पर भी ए प्लस बी, यहाँ पर भी ए प्लस बी दिख रहा है जैसे, बट नहीं है, तो चलो ठीक है। 2 कॉमन निकाल के देखते हैं, तो ए प्लस बी हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी इस ए प्लस बी की जगह पे मैंने अगर वो पुट कर दिया जो इक्वेशन 1 में है, तो एंगल ए प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 180 माइनस एंगल बी ओ सी is equals to 180 degree. I think I'm going to get all that what I required in the proof. बस इसको सिंप्लीफाई करना बाकी है। सिंप्लीफाई ऐसे करो सो दैट यू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो एंगल ए प्लस 360 माइनस 2 इंटू एंगल बी ओ सी। मिस्टेक नहीं करना है, मिस्टेक किया तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बी ओ सी पॉजिटिव है, इसलिए इस नेगेटिव को वहाँ पे भेज के पॉजिटिव करता हूँ, नेगेटिव को इधर शिफ्ट करता हूँ। तो एंगल ए प्लस 360 माइनस 180 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल बी ओ सी। तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस 180 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल बी ओ सी। 2 को इधर शिफ्ट कर देते, एंगल ए प्लस 180 अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। तो ये शिफ्ट हो सकता है, मतलब सेपरेट हो सकता है, एंगल ए बाई 2 प्लस 180 बाई 2 इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। तो ए बाई 2 तो एंगल ए बाई 2 ही है, प्लस 90 ही है, एंगल बी ओ सी ही है, काम ख़त्म हो गया। दैट्स इट, सिंपल है ना? बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो, सेम वे से ये करते हैं, फिर ये क्वेश्चन करते हैं। ओके, वही सब जगह पे वही कैटेगरी है, वही तरीका है। हमें क्या क्या करना है, चलो वर्क करते हैं। ऑफ कोर्स ये ए हो जाएगा, ये बी एंड ये बी हो जाएगा। मुझे क्या क्या चाहिए? एस ओ आर चाहिए। एस ओ आर मतलब ये एंगल चाहिए, एंड एंगल पी एंड एंगल क्यू चाहिए। तो ऐसे वाले सब एंगल चाहिए। ठीक है, पहले एस ओ आर को देखते हैं। एंगल एस ओ आर प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों पता है, तो ए प्लस बी ही कनेक्शन होगा, तो कर देते हैं 180 माइनस एंगल एस ओ आर। नहीं भी यूज़फुल होगा तो भी ठीक है ना, रख दिया, इक्वेशन बना के रख दिया। नेक्स्ट इक्वेशन, एंगल पी एंड क्यू को पकड़ के, तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस 2a प्लस 2b, है ना, ये कंप्लीट एंगल प्लस ये कंप्लीट एंगल इज ऑल दैट इक्वल टू 360 डिग्री बिकॉज इट इज एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मैं जब कभी कभी ऐसे ब्रैकेट लिखता हूँ, ब्रैकेट सिर्फ लिखता हूँ, मतलब आपको वहाँ पे रीज़न लिखना होता है। ओके, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, पर्पजली मैं नहीं लिखता हूँ डायरेक्टली, बिकॉज यू शुड नॉट कॉपी इट, यू शुड रिमेंबर इट। तो यहाँ पे ए प्लस बी का कनेक्शन तो दिख रहा है, जैसे बस यहाँ पे वो डाल देते हैं। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस 2 इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी दिख रहा है इज इक्वल टू 360 डिग्री। पुट कर दो, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 180 माइनस एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो मुझे लगता है एंगल पी प्लस एंगल क्यू
प्लस 360 माइनस 2 इंटू एंगल SOR इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। तो ये और ये कट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो गया, आई गॉट द आंसर। देखो बहुत सिंपल है। फाइन, लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का, चलो वर्क करते हैं। तो मुझे क्या क्या करना है, सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट है, ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी, ठीक है। आपको ये पता है कि देखो, इमेजिन करो कि ये एंगल ए है, ये लीनियर पेयर है, तो ये एंगल कितना होता है? यस 180 माइनस ए। समझ में आ रहा है? ये एंगल 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2 है। पता है ना ये कि इन दोनों का एडिशन 180 होता है। तो ये अगर 2b हो तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 180 माइनस 2b होगा, राइट? ये पता होना चाहिए, ठीक है। सिंपल लॉजिक है रे, सिंपल लॉजिक। चलो उसका यूज़ यहाँ पे है, देखते कैसे। सबसे पहले QSR मुझे दिख रहा है, QSR में कुछ इक्वेशन, QSR मतलब ये एंगल, एंड एंगल ए तो है ही नहीं इसमें, ये तो P होना चाहिए मुझे लगता है, सॉरी P होना चाहिए। तो ये रहा वो P एंगल, ओके डन। तो मुझे इन दोनों में रिलेशन चाहिए, तो बहुत ही ज़रा कंफ्यूजन सा लग रहा है, बट एनीवे कर देते हैं, देखते हैं। सबसे पहले QSR, एंगल QSR प्लस A प्लस B इज ऑफ कोर्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड A प्लस B इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल QSR। ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 1, जो हमने तीसरी बार में यही कर रहा हूँ, ठीक है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। अभी P के बारे में सोचते हैं। P इज़ अ पार्ट ऑफ अ ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये एंगल में, ट्रायंगल में एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज ऑफ कोर्स इक्वल्स टू 180, ये तो मुझे पता है, ठीक है। लेकिन इसमें कनेक्शन नहीं लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे A प्लस बी, यहाँ पे A प्लस बी नहीं है, दैट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन हम लोग वो ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं? एंगल Q जो है ये हो जाएगा 180 माइनस 2A, एंड एंगल R जो है ये हो जाएगा 180 माइनस 2B। चेक कर लो, आपको समझ में आता है क्या? आ गया, अच्छी बात है, ओके। सो ये एंगल है, सो एंगल P प्लस Q को मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल Q को लिख सकता हूँ 180 माइनस 2A, प्लस R को मैं क्या लिख सकता हूँ? 180 माइनस 2B इज इक्वल टू ऑफकोर्स 180। एक 180 तो एक 180 से चला जाएगा, ये 2 एंड 2B को मैं उधर शिफ्ट करता हूँ क्योंकि वो निगेटिव है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो एंगल P प्लस 180 जो यहाँ पे है इज इक्वल्स टू 2 इंटू ब्रैकेट A प्लस बी, वहाँ पे शिफ्ट हो गया तो प्लस हो जाएगा A प्लस बी, 2 इंटू ब्रैकेट A प्लस बी। A प्लस बी की जगह पे वो डाल दो जो भी है, ठीक है। चलो लिख लेते हैं। तो एंगल P प्लस 180 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ब्रैकेट A प्लस बी की जगह पे ये आ गया 180 माइनस एंगल QSR। तो एंगल P प्लस 180 इज इक्वल्स टू 360 माइनस 2 इंटू एंगल QSR। यहाँ तक आ गया? हाँ चलो, क्योंकि एज यू गॉट टू नो कि QSR निगेटिव है, जो पॉजिटिव चाहिए मुझे, क्वेश्चन में देख लो, एंड P पॉजिटिव है, वो मुझे नेगेटिव चाहिए, तो इन सबको इधर उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो QSR को इधर शिफ्ट करते हैं, तो 2 टाइम्स एंगल QSR इज इक्वल टू 360 जो वहाँ पे है, इन दोनों टर्म्स को उधर शिफ्ट करते हैं, माइनस 180 माइनस एंगल P। तो आई थिंक आई एम डन विद इट। QSR is equals to 180 minus angle P. If I shift the P the other side, QSR is equals to 180 minus angle P whole divided by 2। अभी आप लोग तो समझ में आ गया होगा कि आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? समझ में आ गया? ये इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट था, 180 माइनस 2 एंड 180 माइनस 2B को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बाकी सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए, और अदर 4 क्वेश्चंस। पहला वाला सिर्फ x था, इक्वेशन का जो लिंक था, कनेक्शन था, वो सिर्फ x था, तो दैट वी चेक्ड। देन वी हैड A प्लस बी एज ए कनेक्शन, राइट? A प्लस बी एज ए कनेक्शन, एंड हियर द कोरिलेटर वाला सेम A प्लस बी एज ए कनेक्शन। ये तो सबसे सिंपल था, है ना? ठीक है, चारों के चारों क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, अंडरस्टैंड करो। नहीं समझ में आ रहा तो फिर से भेजो, मैं फिर से वीडियो चेक करो एक बार, और एक बार वीडियो को देखो। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन है, मतलब सारे नहीं है, ये कोई टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ये वाला,
ठीक है, तो करो, ये सॉल्व एग्जाम्पल में दिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड इट एंड गेट इट डन। टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल देखोगे तो दिमाग से ऊपर चला जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। फिर भी ट्राई करो, अगर वो समझ में आ गया तो भी अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो ट्राई टू वर्क ऑन इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टुमारो।